Welcome students and friends to this channel. So in this lecture we will discuss miscellaneous programming concepts part 2. So miscellaneous programming concepts part 1 we discussed in previous lecture. Those who want to learn the programming stuffs like static variables and a lot many concepts, so they can refer my previous video. So in this video I will discuss some pointers and some array calculations, means some programmatically है ना, and a lot many other things. So let's have a look. So firstly, uh, so we will look programmatically all the concepts one by one. So the very first program, so this statement is what this is. So this is a what header file inclusion है ना. Then ये f function है हमारा, this is f function and this is main function, and these two variables I and j, so they are global variables. So execution will start from this main function है ना, और compilation time पे I और j के लिए memory allot होगी. So this I and this j. So what is the address? Let us assume some 1000 location and some 2000 location. Value for I is 0 and j is 1. Now from main function, so this f is called, so what is f? F address of I. So what is I? 0. Address of 0 is 1000 comma address of j, so is address of 1 is 2000. तो यहाँ हम एड्रेस पास कर रहे हैं, तो यहाँ रिसीविंग एंड पे क्या होना चाहिए? पॉइंटर्स. एक्चुअल आर्गुमेंट्स अगर एड्रेस है तो फॉर्मल आर्गुमेंट्स पॉइंटर्स रिसीव करेंगे. तो यहाँ पर देखिए एफ फंक्शन में यहाँ क्या बनेगा? दो पॉइंटर्स डिक्लेयर किए हुए हैं, एक p, लेट अस सपोज द एड्रेस फॉर दिस इज 3000 and one more q, so it is 4000 है ना. एंड इसमें क्या रिसीव होगा p में? सो 1000 एंड q में आपका होगा 2000. ओके, नाउ first line of this code is p equals to q. So q value we are storing in p. So what is p value? It is 1000. So in this place this q value will be stored. So क्या होगा इससे effect? Then this 1000 is replaced with 2000. Okay, and the second line, so 2 we are storing. कहाँ store कर रहे हैं? p is what? p is now updated 2000 and star p means value at 2000. So what is value at 2000? This location. So this location is updated with 2. Okay, now again come back to this. So this is successfully completed. Now printing I and j. So what will be the value printed? I is 0 and j is 2. So the final values that will be printed is 0 and 2. So the output for this program is, and return 0 is why? Because this main function is return type is integer, that's why we are returning 0. Okay, if it is written as void, then there is no need to return anything. So I think this concept is clear. This is very simple program, just a pointer. Now let's have a look on some different code. Okay, so this is main function and this starts and ends from here. तो यहाँ एक character p है. So this is a p variable, some 1000 है ना. Then two values they are printing. So size of p. Okay, and this p is what? This p is what? Pointer. It is what? Pointer. It is pointer variable. Pointer variable. और डेफिनेटली इसको क्या स्टोर करने के लिए बनाया है? एड्रेस. तो यहां हम किसका साइज प्रिंट कर रहे हैं? एड्रेस का. ठीक है, एड्रेस है ना, एड्रेस साइज. तो एड्रेस साइज लेट अस सपोज ये 2 बाइट्स एड्रेसिंग अगर होगी तो यहाँ 2, दिस विल गिव यू 2, एंड यहाँ क्या स्टोर कर रहे हैं? उसकी वैल्यू. तो एड्रेस यहाँ होगा p मीन्स कैरेक्टर का एड्रेस स्टोर होगा है ना, और स्टार मीन्स उसकी वैल्यू. तो कैरेक्टर डेटा टाइप का साइज कितना होगा? 1. So the result for this is what? 2 comma 1. So this is the answer for that. Now next, starting from here and ending here. तो first character p.
तो यहाँ एक गुड स्ट्रिंग है, सो लेट अस टेक इट GOOD, ओके, एंड P इज पॉइंटिंग टू दिस G, तो यहाँ P इज अ पॉइंटर है ना दिस, सो ये सम दिस इज व्हाट स्ट्रिंग है ना, तो कुछ एड्रेस होगा, सो लेट अस अज्यूम सम 1000, 1002, 1004 and 1006 like this, okay, and one array is also declared like this. तो array का डिक्लेरेशन किस तरीके से है, so this is a array, character array, and it is also storing what like GOOD, okay, and at last क्या इंक्लूड होगा यहाँ पे, नल कैरेक्टर, ठीक है, एट लास्ट व्हाट, नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर, ओके, सो दिस रिप्रेजेंट्स नल कैरेक्टर। तो यहाँ क्या स्टोर है, जी इंडेक्सिंग अगर एप्लीकेबल है, सो डेफिनेटली एप्लीकेबल बिकॉज इट इज एरे, सो 0 1 2 3 एंड दिस इज 4, and address, let us suppose this is 2000, it is array na of characters, so it is not 2000, this is 1001 white hai na, so it is 1001, 1002 and 1003, here also same, so 1000, 2001, 2002, 2003 and 2004, okay, now यहाँ पर 3 वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं, and first is size of P, so what is the size of P, P is what, P is a pointer to what, a character, तो pointer means address है this है ना, so address, तो address will take 2, so 2, first value is 2, okay, and size of value at P, so value at P, P is what 1000, और 1000 पे value क्या है, it is G, so G is what character, so ये कितना लेगा, character 1 byte है ना, like this, एंड स्ट्रिंग लेंथ STRLEN, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ P, तो अगर P यहाँ पॉइंट कर रहा है वो स्ट्रिंग की लेंथ अगर हम देखेंगे, सो व्हाट विल दिस गिव, ये हमें देगा 4, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है यहाँ पे 4। नाउ नेक्स्ट दिस प्रिंट स्टेटमेंट है ना, सो साइज ऑफ A, सो A इज व्हाट, A इज एरे, तो इस एरे का साइज कितना है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है ना, 5 एलिमेंट्स इन ऑल इंक्लूडिंग व्हाट, नल कैरेक्टर, सो साइज ऑफ एरे इज 5, बट स्ट्रिंग लेंथ अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4 आएगा, सो दिस विल गिव यू 5 and 4। तो हियर वन इंपॉर्टेंट नोट, सो व्हाट इज दैट नोट, दैट नोट इज साइज ऑफ व्हाट, एरे, तो साइज ऑफ एरे में क्या आएगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्लस नल कैरेक्टर, प्लस नल कैरेक्टर, whereas अगर STRLEN की बात करते हैं स्ट्रिंग लेंथ, so this will only give number of characters, only number of characters। तो I think this is clear to you, this is simply size of and what, STRLEN function, okay। now next, so this is starting, यहाँ से starting है और ये end है इसका, कैरेक्टर एक एरे है, P इज द एरे, और कैरेक्टर एरे है 20 एलिमेंट्स का, ठीक, लेट अस सपोज दिस, सो 0 1 2 3 4 and similarly up to 19, okay, 20 elements। now this is what, this is a pointer pointing to a string, और string का नेम क्या है, STRING, and this is a pointer pointing to this, so pointer name is what, S, okay। now understand very carefully what is the concept behind this, so यहाँ हम अगर एड्रेस अज्यूम करते हैं तो 1000, तो कैरेक्टर एरे है 1001 1002 1003 एंड सिमिलर, यहाँ अगर हम 2000 ऑनवर्ड्स अगर हम अज्यूम करते हैं तो 2000, इसका 2001 2002 लाइक दिस, ओके। नाउ व्हाट दे, इंटीजर लेंथ है ना, लेंथ इक्वल टू STRLEN ऑफ S, तो यहाँ लेंथ वेरिएबल जो होगा, लेंथ वेरिएबल में क्या आ जाएगा, लेंथ वेरिएबल S का लेंथ आ जाएगा, तो व्हाट इज लेंथ ऑफ S, सो दिस इज स्ट्रिंग,
1 2 3 4 5 6, so string length is 6. नाउ दिस स्टेटमेंट, तो ये फॉर लूप है, 0 से लेके लेस देन लेंथ, लेंथ कितना है 6, तो लेस देन 6 मतलब 5, तो 0 to 5 रन होगा, तो 0 to 5 मीन्स 0 1 2 3 4 5, ओवरऑल 6 टाइम्स. तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 0. तो व्हाट दे आर डूइंग कि पी ऑफ आई मीन्स 0, तो पी ऑफ 0 मीन्स दिस लोकेशन, ठीक है. और क्या रख रहे हैं यहाँ पे, एस ऑफ लेंथ माइनस आई, तो लेंथ कितना है 6, तो एस ऑफ 6 माइनस आई क्या है, देखिए फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 के लिए क्या किया, पी ऑफ 0 इक्वल टू एस ऑफ लेंथ 6 माइनस आई मीन्स 0, तो मीन्स एस ऑफ 6, और एस ऑफ 6 पर वैल्यू क्या है आपकी, तो अगर हम देखें तो ये 0 1 2 3 4 5 एंड यहाँ क्या होगा लास्ट में इंक्लूडिंग नल कैरेक्टर, ठीक है. तो ये 6 पे क्या होगा, इंडेक्सिंग पे नल कैरेक्टर, तो एस ऑफ 6 मतलब नल, तो ये नल आप कहाँ कॉपी कर रहे हैं, पी ऑफ 0 में, तो यहाँ आपने पी ऑफ 0 में नल कैरेक्टर, ठीक है. देन आफ्टर दैट सेकंड इज व्हाट, आई की वैल्यू 1, सो आई इज 1, ओके. देन 1 के केस में क्या होगा कि p ऑफ 1 में, p ऑफ i मीन्स p ऑफ 1 में s ऑफ लेंथ, लेंथ इज 6 माइनस i मीन्स 1, तो s ऑफ 5 कॉपी करेंगे, तो व्हाट इज s ऑफ 5, दिस लास्ट, सो इट इज g, ओके. तो आप g यहाँ कॉपी कर रहे हैं, मीन्स अगर आप ये लूप प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में यहाँ स्टोर कर रहा है, g है ना. देन व्हाट, इट इज n, देन इट इज i, then it is r, then it is t, and then it is s, like this, okay. Now this loop once over, तो यहाँ प्रिंट क्या करना है हमको, s, परसेंटेज s यूज्ड फॉर स्ट्रिंग प्रिंटिंग, है ना. एंड दिस p, सो व्हाट इज p, तो p इज दिस एरे, तो ये एरे प्रिंट करना है, तो एरे कहाँ से, ये परसेंटेज s है, तो यहाँ कोई लूप तो है नहीं कि जो एग्जिस्टिंग पूरा एक एक एलिमेंट करके प्रिंट कर रहा है, परसेंटेज s पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा, कहाँ तक प्रिंट करता है, जहां तक उसको नल कैरेक्टर ना मिल जाए, ठीक है. तो स्ट्रिंग के केस में क्या रहता है कि जब नल कैरेक्टर रीच पहुंच जाते हैं तो देन द स्ट्रिंग विल बी प्रिंटेड. तो यहाँ इस केस में जैसे अगर हम इसको प्रिंट करते एस को यहाँ पे, तो एस क्या प्रिंट करता है, स्ट्रिंग, क्योंकि इसको नल मिला है यहाँ पे, तो स्ट्रिंग प्रिंट करता है, string. बट पी को प्रिंट करना है, तो पी के फर्स्ट सेल में ही क्या मिल गया हमें, नल, तो नल मिल गया, तो क्या ये आगे कुछ प्रिंट करेगा, नो. सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, नो आउटपुट. गेटिंग माई पॉइंट. तो यहां क्या है कि ये परसेंटेज एस जो है दैट प्रिंट्स अ स्ट्रिंग, है ना, अप टू नल कैरेक्टर, बट यहां नल कैरेक्टर मुझे स्टार्टिंग में ही मिल गया, तो दैट्स व्हाई देयर इज नो आउटपुट, ओके. दिस प्रोग्राम इज लॉजिकली करेक्ट, ऑल द थिंग्स आर करेक्ट, है ना, बट नो आउटपुट एट ऑल, इसका कोई आउटपुट नहीं है. So I hope that this is clear to you how we are dealing. So these are nothing but array of characters and strings. Okay, now this. तो यहाँ ये यहाँ से starting and closing. So S is a character array. तो S एक character array है आपका like this. और यहाँ स्टोर कर रहे हैं क्या, MAN. तो this is M, this is A, this is N, and one more null character, है ना. इंडेक्सिंग इज फ्रॉम 0 1 2 3, और एड्रेस अगर अज्यूम करें 1000, तो इट इज 1001, 1002 एंड 1003. नाउ आई इज अ वेरिएबल, सो आई, एंड व्हाट दे आर डूइंग, आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, लूप रन कर रहे हैं, दिस स्टेटमेंट इज अंडर लूप. तो ये कहां तक चलेगा, 0 से एस ऑफ आई, तो एस ऑफ आई मीन्स एस ऑफ आई क्या है, 0, एस ऑफ 0 क्या है, एम. तो ये अगर कैरेक्टर नल मिल गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये नल और नॉट नल पे वर्क करेगा, ठीक है. तो अभी फिलहाल के केस में, है ना, ये क्या है, एस ऑफ 0, आई की वैल्यू 0 के लिए एस ऑफ 0 जो है वो क्या है, एम है. तो यहाँ है, तो यहाँ क्या प्रिंट करेगा, ये सबसे पहली बार ही प्रिंट करेगा एस ऑफ एम. तो एस ऑफ एम मीन्स एस ऑफ 0, एस ऑफ 0 प्रिंट करेगा, और स्टार 0 प्लस एस प्रिंट करेगा, और 0 ऑफ एस प्रिंट करेगा, एंड स्टार एस प्लस 0, है ना. तो एस ऑफ 0 मीन्स 0 itself, तो व्हाट इज द वैल्यू, एम.
first cell, again 0th cell, 0 plus s. So what it will print a and it will print n. Okay, not this. So this is m, again 0th cell, it is what, m only, and it is m only, and it is m. So m 4 times. Okay, and स्टार्टिंग में मैंने आपको जब वन डायमेंशनल एरे पढ़ाया था तो मैंने वहां बताया था कि हम इस तरीके से एक्सेस करें, ऑल आर सेम थिंग। अगर हम a ऑफ i बोले, i ऑफ a, ऑल आर सेम, और सिमिलरली स्टार i प्लस s और स्टार s प्लस i, तो ऑल दीज आर सेम, all these are same, है ना, in single dimensional array, because array internally uses pointer as a data structure, है? That's why this dereferencing operator we are using. Now next time i की वैल्यू क्या होगी, 1, तो i की वैल्यू 1 के केस में क्या आएगा, जब i की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी तो 1 के केस में s ऑफ 1 क्या, a एंड a, एंड जब i की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो ये i की वैल्यू किस केस में, 0, तो यहाँ i की वैल्यू 2 के केस में क्या आएगा, दिस इज n n और n, और जब i की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी तो s ऑफ 3 क्या होगा आपका, s ऑफ 3, सो दिस s ऑफ 3 क्या है, इस फिगर में दिख रहा है नल कैरेक्टर, तो इट इज इक्वल टू नल, तो यहाँ नल मिला हमें तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, सो वी आर आउट ऑफ द लूप। ओके, सो आई होप दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था वन डायमेंशनल एरे। नाउ दिस प्रोग्राम, तो यहाँ ये मेन यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ, तो देखिए यहाँ एक स्ट्रिंग है, तो ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। ओके, दिस इज स्ट्रिंग, तो s t r i n and g and one more what, null character, this null character। ओके, तो अगर हम इंडेक्सिंग करें तो यहाँ कहाँ से आएगा, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये s यहाँ पॉइंट करेगा, ठीक है, तो ये s पॉइंट कर रहा है ना, बट s एड्रेस भी होगा इसका कुछ, लेट अस अज्यूम सम 1000, देन 1001, देन 1002, देन 1003, देन 1004, देन 1005, okay, like this, and 1006. Now next is what, so this is basically this is what, this is an array, this is an array like this, okay, this is an array like this, this is 1006 and this is pointed by a. Now there is one more thing, p, so p किस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है, k i n g, तो ये अगर इंडेक्सिंग करेंगे तो 0 1 2 3 एंड वन मोर नल कैरेक्टर, सो इट इज 4, और एड्रेसिंग अगर करेंगे तो लेट अस अज्यूम सम 2000, देन 2001, 2002, 2003 एंड 2004, तो these two lines executed, है ना। Now a of 2 equal to w, so what is a of 2, array का सेकंड एलिमेंट दिस, सो यहाँ r के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर दिया जाएगा, r के प्लेस पे यहाँ हो जाएगा w। ओके, नाउ दिस p of 2 equal to what, w, so p of 2 is what, p, तो p किसको पॉइंट कर रहा है, ये स्ट्रिंग को, है ना, सो दिस स्ट्रिंग, दिस एंटायर स्ट्रिंग व्हाट, किंग, तो इस स्ट्रिंग में सेकंड सेल पे अगर जाएंगे तो ये सेकंड सेल को, यहाँ पे ये आपका एरे तो है नहीं, है ना, तो यहाँ पे जो ये है दिस इज नोन एट व्हाट, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो यह स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो आप स्ट्रिंग कांस्टेंट के केस में आप इसको, इसके वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते, स्ट्रिंग इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, ठीक है, बट आप अगर इसको मूव करें तो आप इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ये पॉइंटर मूव करें, p को अगर p+1 करेंगे 2001 पे आ जाएगा, i की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट चेंज। ओके, तो सम इंपॉर्टेंट नोट दैट, है ना, स्ट्रिंग कांस्टेंट, इन स्ट्रिंग कांस्टेंट, इन string constant we can't change its value, okay, we can't change its value, है ना, and in arrays, in array we can't change what, we can't change its base address,
एरे का हम क्या चेंज नहीं कर सकते, बेस एड्रेस। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि एरे में हम बेस एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, कंटेंट्स चेंज कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग कांस्टेंट के केस में हम उसके कंटेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन स्ट्रिंग कांस्टेंट वी कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू, मींस जो है ना, मॉडिफिकेशन इज अनडिफाइंड, modification is undefined in string constant, okay, so this is very important concept, okay, that अगर string है तो वो constant है, उसको हम change नहीं कर सकते उसके contents को, okay। now pay attention, है ना, because this is very important concept, है ना। तो first, what is this? This is a array, so a is an array and 5 values are there. So what are those values? So those values are 10, 20, 30, 40 and 50. 10, 20, 30, 40 and 50. इंडेक्सिंग क्या होगी, 0, 1, 2, 3 and 4। और एड्रेसेस अगर हम अज्यूम कर लें 1000, तो इसका क्या होगा, इंटीजर है, सो इट इज 1002, 1004, 1006 and 1008. Now so this statement gets executed. Second is what? Second is p array, but it is star, means pointers array, so it is an array of pointers. So this p, like this p, but it is array of pointer, so 5 elements again, so 5 elements means 0, 1, 2, 3 and 4. Now इसकी contents क्या होंगे, so let us see very carefully. So what will be the content in that case? तो फर्स्टली क्या है, a, तो a मीन्स क्या, एरे का नेम, एरे का नेम क्या होगा, बेस एड्रेस, कितना होगा 1000, तो यहाँ क्या आ जाएगा पहले कंटेंट में 1000। नेक्स्ट कंटेंट में a + 1, तो a मीन्स 1000, 1000 + 1 मीन्स 1000 + 1 मीन्स एड्रेस में अगर आप 1 ऐड करोगे तो एक जंप करेगा उसके साइज से, तो साइज कितना है 2, तो 1002, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1002, मीन्स ये यहाँ पॉइंट करेगा, ये यहाँ पॉइंट करेगा, समथिंग लाइक, है ना। सिमिलरली 1000 and +2 is 1004, so 1006, 1008. Observe very carefully, okay। Now integer, there is one double pointer, एक double pointer है ptr name का, so this is what, ptr, okay, this is, let us assume some, है ना, here also some base addresses are there, okay, this case, तो यहाँ बेस एड्रेस हम अज्यूम कर लेते हैं, इसका है 2000, तो यहाँ कितना होगा 2002, 2004, 6 and 2008, okay। now ptr, so ptr is there and what they are storing, ptr में p स्टोर कर रहे हैं, p का वैल्यू, so what is p is means बेस एड्रेस, बेस एड्रेस क्या है 2000, तो यहाँ 2000 स्टोर होगा, ओके, और इसको अज्यूम कर लेते हैं 3000 पर स्टोर, तो ptr का वैल्यू कितना है 2000। नाउ ptr प्लस प्लस, तो ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, ptr को प्लस प्लस कर रहे हैं, तो ये 2000 प्लस प्लस मीन्स 2001 नहीं होगा, ये क्या होगा 2002, बिकॉज 2000 क्या है इस एरे का एड्रेस, तो अगर इसमें 1 ऐड करोगे तो कितना जंप होगा 2 साइज के अकॉर्डिंग, तो ये ptr प्लस प्लस मीन्स क्या जाएगा यहाँ पे, सो दिस विल चेंज टू ptr from 2000 to 2002, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, सो दिस इज 2002। नाउ ये स्टेटमेंट, तो यहाँ 3 वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं, ptr माइनस p, तो व्हाट इज ptr, ptr इज व्हाट, वैल्यू कितना है 2002, और p कितना है हमारा, p है 2000, तो 2000 माइनस 2 करेंगे तो वैल्यू आएगी 2, है ना, बट जब हम 1 ऐड कर रहे थे तो वहां क्या आ रहा था, 2 जंप कर रहे थे, तो है ना, तो 2 के केस में भी यहाँ फिर अगर वैल्यू 2 आ रही है तो 2 के केस में भी आंसर क्या आएगा 1, मतलब अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं तो 2 ऐड हो रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट साइज कितना है 2, है ना, और अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट कितना जंप होंगे 4 होंगे। सिमिलरली ptr माइनस p किया तो ptr 2002 था और p हमारा 2000 था, 2002 माइनस 2000 तो 2 आएगा, तो 2 के केस में साइज के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी, तो 2 मीन्स साइज 2 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, ओके। सेल वाइज अगर हम बात करें
तो 1 ऐड करने पर 2 हो रहे थे, इसी तरीके से माइनस करने पर कितना होंगे, 2 के केस में 1। तो सिमिलरली यहाँ पीटीआर, नेक्स्ट पीटीआर इज व्हाट, अगेन 2002, और 2002 पर वैल्यू क्या है, सो 2002 पर वैल्यू है हमारा 1002, एंड 1002 माइनस ए इज व्हाट, ए इज 1000, तो 1002 में से 1000 जाएगा तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1002 में से 1000 गया 2, बट एक्चुअली कितना आएगा 1। ओके, एंड दिस इज डबल स्टार पीटीआर, पीटीआर कितना है 2002, तो सिंगल स्टार मीन्स उस पर वैल्यू, तो इट इज 1002, अगेन 1 स्टार, तो 1002 पर वैल्यू क्या है आपका 20, सो यहाँ कितना रिजल्ट आएगा, दिस विल गिव यू 20। ओके, तो ये पहला आया आपका 1, 1 एंड 20। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या किया है, पीटीआर को अगेन प्लस प्लस किया है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो अगेन ये कितना जंप करेगा 2004। नाउ पीटीआर इज व्हाट 2004 माइनस 2000, 2004 माइनस 2000 मींस 4, बट एक्चुअली 4 नहीं होगा, कितना आएगा वहां पे 2 आएगा। गेटिंग माय पॉइंट, 2 ऐड करने पे 4 जंप कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना, अगर 2 वैल्यू 4 वैल्यू आती है तो 2 जस्ट हाफ, बिकॉज साइज के अकॉर्डिंग डिसाइड हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पीटीआर कितना है 2004, 2004 पर वैल्यू, वैल्यू है 2004, 2004 पर वैल्यू कितना है, ये दिख रहा है कितना है 1004, तो 1004 एंड माइनस ए इज 1000, तो 1004 माइनस 1000 कितना होगा 4, तो 4 के केस में यहाँ कितना आएगा 2 आएगा आगे, एंड दिस डबल सिलेक्शन है ना, डी रेफरेंसिंग। 2004 पे वैल्यू कितना है, 2004 पे वैल्यू इट इज 1006, एंड 2004 पर वैल्यू, सो व्हाट 2000, दिस इज 1004, एंड 1004 पर वैल्यू कितना है 30, सो डबल स्टार। गेटिंग माय पॉइंट, आई थिंक इट इज क्लियर ना, है ना। सो दिस इज व्हाट 30, तो यहाँ कितना आएगा 30। नाउ दिस स्टेटमेंट कंप्लीटेड। अगला है पीटीआर को फिर से प्लस प्लस किया है, तो 2004 को प्लस प्लस करेंगे तो नाउ दिस वैल्यू इज 2006। ओके, 2006, तो यहाँ 2006 माइनस 2000 आएगा 6, बट एक्चुअली कितना होगा 3। ठीक है, 2006 को सिलेक्ट किया मींस वैल्यूज पे कितना है, 2006 पे वैल्यू ये दिख रहा है, दैट इज 1006, तो 1006 माइनस 1006, बट एक्चुअल 3। नाउ डबल सिलेक्शन, तो 2006 को सिलेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा हमें 1006, और फिर 1006 को सिलेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा 40, तो यहाँ कितना आंसर आएगा 40। तो अभी फिलहाल के केस में आउटपुट क्या आया 1, 1 एंड 20। ओके, एंड व्हाट इट इज 2, 2 एंड 30, एंड 3, 3 एंड व्हाट 40। तो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू, है ना। दो फर्स्ट एरे जो है ये है हमारा एरे ऑफ वैल्यूज, ए इज व्हाट एरे ऑफ वैल्यूज, एंड दिस इज व्हाट एरे ऑफ पॉइंटर। तो ये हमारा ये एरे ऑफ इंटीजर्स, और ये जो है हमारा ये क्या है एरे ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, एरे ऑफ पॉइंटर्स। सो I hope that this concept is clear to you. Now let's have a look one more program similar to that, है ना, then it is very much clear. So okay, now in this there are some है ना important है ना note down that we are supposed to get. तो पहला क्या था, हमने देखा था कि अगर हम ऐड करते हैं तो एड ऑन में क्या, एड ऑन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, तो फर्स्ट नोट इज व्हाट कि अगर वी कैन ऐड इंटीजर कांस्टेंट टू पॉइंटर, तो इसका जस्टिफिकेशन क्या हो सकता है, जैसे अगर पीटीआर की हमने इंक्रीमेंट किया था, ठीक है, इनिशियली पीटीआर में अगर लेट अस अज्यूम पीटीआर में कितना था आपका 1000 या 2000 था, ठीक है, तो इसको जब प्लस प्लस किया यहाँ पीटीआर को, तो प्लस प्लस के केस में तो इसको 2000 प्लस 1 होना चाहिए था, लेकिन 1 के प्लेस पे कितना आया था 2, तो यहाँ आया था रिजल्ट 2002। तो हम ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स को, बट वो साइज के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा, 1 ऐड करने पर 2 है ना अकॉर्डिंगली अगर इंटीजर है तो। सेकंड इज व्हाट वी कैन सब्ट्रैक्ट इंटीजर कांस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंटर इफ पॉसिबल, तो हम इंटीजर कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं पॉइंटर से। ओके, तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम, अगर वो सेम एरे पे है ना पॉइंट कर रहे हैं देन ओनली वी कैन सब्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ प्रीवियस केस में हमने देखा था कि यहाँ जैसे 2, जैसे यहाँ पे ये जो है ना ये जस्टिफिकेशन है ना दिस, तो जस्टिफिकेशन क्या हो सकता है कि जैसे हमने किया था पीटीआर माइनस पी कर रहे थे, तो पीटीआर कितना है हमारा है 2000,
और माइनस पी कितना है, पी है 2000, है ना, ये पीटीआर 2002 एंड दिस इज 2000, तो ये आ रहा था 2002, सो इट इज 02 मींस 2, बट एक्चुअली कितना आ रहा है 1। तो ये दोनों की दोनों क्या है, सेम एरे पे पॉइंट कर रहे हैं ना, जो 2000 और 2002 जो एड्रेस है वो सेम एरे पॉइंट कर रहे हैं दोनों, तो हम उनका सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। थर्ड इज व्हाट, वी कैन सब्ट्रैक्ट टू पॉइंटर्स इन जनरल, दो पॉइंटर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू कहाँ पॉइंट कर रहे हो, जैसे पी अगर यहाँ क्यू है और यहाँ पर पी है, तो पी और क्यू सेम एरेस पे पॉइंट कर रहे हो, ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। एंड पी ग्रेटर देन क्यू, तो पी ग्रेटर देन मतलब पी आगे हो, देन ओनली पी माइनस क्यू हम कर सकते हैं, देन ओनली पी माइनस क्यू कैन बी परफॉर्म्ड, ठीक है। सो आई होप दैट दिस note down is clear to you. Now one more important question. So what is first, again the same thing, so a array है ना, a array is there, so a array and values are what, values are 0 1 2 3 and 4, okay, एंड इंडेक्स क्या होंगे इसके, ऐसे ही सिमिलरली आपका पी एरे है, पी एरे, तो पी एरे में क्या होगा, पी एरे में आपका ए है, तो मैं पहले इसके एड्रेस अज्यूम कर लेता हूँ, ये पी एरे है हमारा, ठीक है, दिस इज पी। नाउ तो यहाँ इंडेक्सिंग हमारा पता है, इंडेक्सिंग क्या होगा, दिस इज 0 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ 1000, so it is integer, so 1002 1004 1006 and 1008, and similarly यहाँ पे फर्स्टली ए स्टोर कर रहे हैं, ए मीन्स बेस एड्रेस कितना है 1000, तो यहाँ 1000 होगा, देन दिस इज 1002, देन 1004, देन 1006 एंड देन 1008, ओके। एंड इंडेक्सिंग क्या होगा इसका, इंडेक्सिंग इसका होगा 0 ऑनवर्ड्स, है ना, तो इंडेक्सिंग यहाँ होगा 0 ऑनवर्ड्स, सो इट इज 0 1 2 3 एंड 4, एंड एड्रेस अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज 2000, तो 2002 2004 2006 एंड 2008, okay. Now again same ptr, so it is double pointer, so ptr, and क्या स्टोर कर रहे हैं हम इसमें, ये अज्यूम कर लेते हैं 3000 है, उसमें p की वैल्यू स्टोर की है, p की वैल्यू क्या है यहाँ पे, p मीन्स बेस एड्रेस, तो बेस एड्रेस कितना है, a मीन्स दिस बेस एड्रेस, तो p का बेस एड्रेस है 2000। नाउ ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, ptr प्लस प्लस करेंगे तो 2000 प्लस प्लस 1 मीन्स 2002, क्योंकि ये 2000 मीन्स इस एरे का बेस एड्रेस है, प्लस 1 करोगे तो 2 जंप करोगे। नाउ नेक्स्ट ptr माइनस p, अगेन सेम, ptr माइनस p मीन्स 2000 माइनस 2 2000 माइनस 2000, तो 2 आएगा, तो 2 के केस में यहाँ कितना आएगा आंसर 1, है ना। नाउ दिस स्टार ptr मीन्स 2002 को सिलेक्ट करिए, तो 2002 को सिलेक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा 1002 माइनस a मीन्स a इज 1000, तो 1002 माइनस 1000 मतलब कितना आएगा 2, तो अगेन यहाँ कितना आएगा 1 आएगा। और डबल स्टार ptr मीन्स 2002 को सिलेक्ट किया तो आया आपका 1002, और 1002 को सिलेक्ट किया तो आपका कितनी वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू 1, सो हियर यू विल गेट 1 1 एंड 1। तो फर्स्ट केस में हमारा क्या आया, आउटपुट अगर हम डिस्कस करते हैं तो 1 1 एंड 1 दिस, ओके। नाउ नेक्स्ट दिस स्टेटमेंट, तो ये देखिए ये प्लस है, ये स्टार है और ये डबल प्लस है, ठीक है, तो ये जो प्लस प्लस होता है ये दिस इज यूनरी ऑपरेटर एंड स्टार इज आल्सो यूनरी ऑपरेटर। तो अगर बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, है ना, बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर में प्रायोरिटी किसका होता है, प्रेसिडेंस ज्यादा यूनरी ऑपरेटर का, है ना। और अगर यूनरी ऑपरेटर दो साथ में आ गए तो फिर एसोसिएटिविटी होगी, तो एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट मीन्स पहले ये सॉल्व होगा, तो पीटीआर प्लस प्लस, तो पीटीआर कितना है, पीटीआर है 2002, और 2002 प्लस प्लस मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट, तो अभी नहीं होगा वो, ठीक है, 2002 है ना, एज इट इज रहेगा, और 2002 पर वैल्यू, तो 2002 पर वैल्यू क्या है, 2002 पर वैल्यू है हमारी 1002, तो 1002, ओके, वी आर नॉट चेंजिंग दिस, है ना। देन ये जब कंप्लीट हो गया ये स्टेटमेंट, तो पीटीआर को इंक्रीज करना रह गया था, सो दिस विल बिकम 2004,
सो दिस विल बिकम व्हाट 2004. तो राइट टू लेफ्ट हमने इसमें एसोसिएटिविटी फॉलो की. अगेन आई एम रिपीटिंग, पीटीआर में वैल्यू था 2002. 2002 को पोस्ट इंक्रीमेंट करना है तो अभी इंक्रीमेंट नहीं होगा, पोस्ट मींस बाद में होगा. तो अभी फिलहाल वैल्यू पीटीआर प्लस प्लस का रहा 2002 और उसकी वैल्यू, तो वैल्यू को कहीं असाइन तो कर नहीं रहे हैं, सिंपली वैल्यू देख रहे हैं. तो 2002 पर वैल्यू जाके ऑब्जर्व किया 1002. ओके फाइन, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ. तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर पेंडिंग वर्क क्या था कि पीटीआर को इंक्रीज करना था. तो इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 2004. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट प्रिंटिंग. तो प्रिंट में क्या कर रहे हैं, पीटीआर माइनस पी. तो पीटीआर माइनस पी अगेन सेम, पीटीआर कितना है 2004 माइनस 2004 आया. 4 के केस में क्या आएगा रिजल्ट 2 आएगा. ठीक है, स्टार पीटीआर माइनस ए. तो पीटीआर कितना है 2004 को सिलेक्ट किया तो वैल्यू क्या मिलेगा 1004. और 1004 माइनस 1000 करोगे तो इट इज अगेन 2. ओके, बस 4 आएगा बट अल्टीमेटली 2 विल बी द आंसर. और पीटीआर को डबल सेलेक्ट करना है तो 2004 को सिलेक्ट किया तो इट इज 1004. 1004 को सिलेक्ट किया इट इज 2. सो फाइनली हमारा आंसर क्या मिला यहाँ पे 2. सो दिस इज 2. सो नेक्स्ट केस में क्या आया, नेक्स्ट केस में ये पहला आया, नेक्स्ट केस में आया 2 2 एंड 2. दिस इज सेकंड आउटपुट. नाउ थर्ड. अब इसमें क्लियरली है पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो प्लस प्लस पीटीआर मींस पहले ही इसको इंक्रीज कर देना है. ठीक है, तो पीटीआर को प्लस प्लस आपने पहले ही कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 2006. और स्टार मींस उसकी वैल्यू देखो तो जस्ट गो एंड विजिट दैट वैल्यू. 2006 पे वैल्यू कितनी है ये दिख रहा है 2006 पे 1006 वैल्यू. ठीक है, सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. देख लिया कहीं स्टोर तो किया नहीं, फाइन, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, कोई पेंडिंग वर्क भी नहीं है. देन व्हाट विल बी नेक्स्ट, प्रिंट स्टेटमेंट. तो पीटीआर माइनस पी, तो 2006 माइनस 2006 आएगा बट एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी 3 है ना. सेम कॉन्सेप्ट. 2006 पर स्टार मींस वैल्यू कितना है 2006 पर, सो इट इज 1006. और 1006 माइनस 1000, तो 1006 माइनस 1000 अगेन 6, सो इट इज 3. एंड डबल स्टार पीटीआर, तो पीटीआर कितना है आपका 2006 पॉइंटर है ना. 2006 को सिलेक्ट किया तो यू विल गेट 1006 और अगेन 1 स्टार, तो 1006 पे कितनी वैल्यू है इट इज 3. सो दिस विल गिव यू 3. नाउ हियर इज अ ट्विस्ट है ना, सी दिस वेरी केयरफुली. सो प्लस प्लस स्टार पीटीआर, तो पहले स्टार पीटीआर. तो पीटीआर कितना है हमारा, पीटीआर अभी फिलहाल है 2006. 2006 पर वैल्यू कितनी है 2006, ये है वैल्यू, दिस वैल्यू. ओके, 2006 पर वैल्यू कितनी है 1006, दिस. ओके, अब यहां कुछ प्लस प्लस करना है तो पहले ही मॉडिफाई करना है इस जगह को. तो 1006 में अगर आप प्लस प्लस करोगे तो ये वैल्यू आपका चेंज होके क्या हो जाएगा 1008. अगेन आई एम रिपीटिंग, यहां लिख देता हूं मैं केयरफुली कि व्हाट दिस मीनिंग है ना. यहां आपका पी टी आर और यहाँ पे स्टार था और ये प्लस प्लस था. तो देखिए पीटीआर कितना था 2006. तो 2006 को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो 2006 को सिलेक्ट किया तो आपने मिला 1006. और 1006 को जब इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 1008. तो ये 1008 हो गया. ठीक है, सो दिस इज व्हाट जो वैल्यू है वहां पे वो कितना हो जाएगा 1008. 2006 का जो एड्रेस जो वैल्यू है वहां पे 1006 वो इंक्रीमेंट हो जाएगा. तो 1006 ऐड होगा तो 1008. नाउ सी केयरफुली. अब यहाँ पे पीटीआर माइनस पी कर रहे हैं तो पीटीआर माइनस पी करोगे तो पीटीआर आपका है 2006 और माइनस पी करेंगे तो माइनस पी इज व्हाट 2000. 2006 माइनस 2006, तो यहाँ कितना ही आना है 3 ही आना है. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, यहां आपने पॉइंटर को इंक्रीज नहीं किया है. ठीक है, पॉइंटर एज इट इज है बट उस पॉइंटर के वैल्यू पर जाके वहां इंक्रीज किया है तो 1006 को इंक्रीज किया है. ठीक है, अभी प्रीवियस केसेस में मैं 1000 ये 2004 2002 2004 2006 ये सारा इंक्रीमेंट कर रहा था है ना. नाउ अगेन वंस मोर, तो पीटीआर इज व्हाट 2006 पे वैल्यू कितनी है अब देखिए ऑब्जर्व करिए 1006 पीटीआर अगेन 2006 पे वैल्यू कितनी है तो ये चेंज हो चुकी है. नाउ दिस वैल्यू इज 1008 और 1008 में से जब आप 1000 हटाएंगे तो इट इज व्हाट 8. तो 8 मींस एक्चुअली 4. सो नाउ दिस इज 4. ओके, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग
PTR इज व्हाट 2006 को सिलेक्ट किया, तो 2006 को सिलेक्ट किया मींस वैल्यू क्या मिली यहाँ पे 1008, और फिर 1008 को सिलेक्ट किया तो 1008 ये है, तो यहाँ कितना आएगा रिजल्ट 4, तो यहाँ आएगा 4। तो हमारा थर्ड आउटपुट जो आया दैट इज डिफरेंट 3, 4 एंड 4। तो आई थिंक ना, आई होप दैट दिस concept is clear to you. So in this concept we are what we are doing, we are dealing with pointers, है ना। तो a जो है वो हमारा array of normal integers है, और p is array of what pointer to integer. Okay, so this concept is clear to you, है ना। So now important note. So what is that note? मैंने बताया आपको in between कि comparing unary operator and binary operator, unary operator is having what higher priority, तो यूनरी का ज्यादा होता है। बट अगर दो यूनरी ऑपरेटर्स हैं, बिटवीन टू यूनरी ऑपरेटर, तो एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। जैसे अभी हमने देखा था कि यहाँ स्टार था और ये पीटीआर था और ये प्लस प्लस था, ऐसा था। तो ये दोनों क्या है, यूनरी है, यूनरी। तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, हम राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे। इट इज राइट टू लेफ्ट सॉल्व किया था इसको, ठीक है। तो ये प्रोग्राम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट। नाउ come to this. So what is that, integer m equals to 44. so m is there, m में कितनी वैल्यू आ जाएगी 44, and this is let us assume 1000, and integer star p, तो ये पॉइंटर वेरिएबल है p, और इसमें let us assume address is 2000, वैल्यू क्या है इसमें m का एड्रेस, what is m address 1000, so here we are storing 1000, means this points to this location. now this is important, integer address of r, तो एड्रेस ऑफ, जब आप डिक्लेरेशन में ऐसा एड्रेस सिंबल लगाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है एलियासिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, एलियासिंग। तो एलियासिंग मीन्स डिफरेंट नेम्स विद सेम एड्रेस क्या होंगे इनके, सेम होंगे। तो मीन्स यहाँ पे जो m का एड्रेस होगा उसी को अब नेमिंग और क्या कर दिए r, तो इसका लाइन का इम्पैक्ट होगा कि मेमोरी लोकेशन सेम रहेगी, बट ये यही अब m है और दिस इज r ऑल्सो, है ना, m एज वेल एज व्हाट r, सो नाउ दिस इज m एज वेल एज r। ओके, सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस लाइन ना, दिस। नाउ n एक इंटीजर लिया, एंड ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, n लिया, इसमें लेट अस अज्यूम 3000, एंड व्हाट they are doing star p को प्लस प्लस, तो व्हाट इज स्टार p, वैल्यू एट p मींस वैल्यू एट 1000 कितना है 44, तो 44 प्लस प्लस करोगे तो 44 ही आएगा, तो n में रिजल्ट आएगा 44। बट यहाँ पेंडिंग वर्क क्या था कि ये लोकेशन को इंक्रीज करना था, है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो ये 44 को जब आप इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा आपको 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नाउ नेक्स्ट इज व्हाट स्टार क्यू, तो यहाँ क्यू एक पॉइंटर लिया आपने, लेट अस अज्यूम सम 4000, और इसमें p -1 रखा, तो p कितना था, p हमारा है 1000, तो 1000 -1, तो 1000 -1 तो कोई मेमोरी लोकेशन हमारे पास है नहीं, बट लेट अस अज्यूम इट इज 998, तो ये जो है ना, ये यहाँ पे ये 998 जो आ रहा है, ये दिस 998 एंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिस, तो ये क्या है यहाँ पे, यहाँ गार्बेज है, दिस इज व्हाट गार्बेज है ना, ये हमारे प्रोग्राम के लिए मेमोरी लोकेशन अवेलेबल नहीं है ना, नॉट अलॉटेड टू आवर प्रोग्राम, है ना, मेमोरी नॉट अलॉटेड टू आवर प्रोग्राम। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर में क्या अपडेशन कर रहे हैं, स्टार पी मतलब p की वैल्यू, तो p में क्या है 1000 पे वैल्यू कितना है 45 हो चुका है, 45 को पहले ही डिक्रीज कर दो, तो ये डिक्रीज करके कितना कर रहे हैं 44, और इसमें फिर +1, तो +1 फिर से कितना किया इनने, +1 44 +1 45, 45 कहाँ अपडेट किया r में, तो r यही लोकेशन है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा 45। नाउ दिस प्लस प्लस और स्टार है तो यूनरी है दोनों, तो राइट टू लेफ्ट पहले स्टार क्यू करेंगे, तो क्यू पे वैल्यू, सो क्यू पे वैल्यू हमको पता नहीं है, तो ये बेसिकली ये दिस इज व्हाट गार्बेज है ना, दिस इज नॉट, वी कैन से दिस इज गार्बेज, तो हम यहाँ क्यू
की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो Q पे जो वैल्यू है, Q पे क्या है 998, तो इसको हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं, प्लस प्लस किया हमने, तो इट इज मीन्स इट इज अगेन 1000। ठीक है, नाउ M, N और R प्रिंट कर रहे हैं, तो M कितना है, M इज 45 अपडेटेड M, N इज व्हाट, N इज 44 और R वही है जो M है, सो इट इज 45 ओनली। So this is 45, 44 and 45. So this is the output for this program. So I hope that this is clear to you. Here the concept is what, aliasing है ना। तो aliasing क्या होता है, aliasing means different names but memory location same होता है, different memory allocate नहीं होती। ठीक है, तो aliasing का जो है वो concept वो यहाँ आपका डिक्लेरेशन में अगर एड्रेस सिंबल के साथ करते हैं और जिस वेरिएबल को असाइन कर देंगे तो उसी वेरिएबल की रीनेमिंग हो जाएगी द्वारा, है ना। रीनेमिंग मीन्स ऑप्शनल एक और नेम अलॉट हो जाएगा उसको। ठीक है, तो लेट अस सी नाउ दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ क्या है, यहाँ इंटीजर a ऑफ 3,4, तो यहाँ 3/4 का एक एरे है, इस तरीके से डिक्लेयर किया है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ये तो वैल्यूज इसमें अज्यूम की है 10, 20, 30, अगर मैं इसका स्टोरेज बनाऊं, है ना, सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज, तो स्टोरेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एड्रेसेस की डिस्कशन कर रहे हैं। तो दिस इज a 3/4, तो 3/4 मतलब ये हमारा होगा a ऑफ 0। एड्रेसेस अगर हम बात करते हैं 1000 से स्टोर है, लेट अस अज्यूम, तो ये 3/4 मतलब लाइक दिस एंड टेक वन मोर लाइक दिस। ओके, तो ये एड्रेस हमारा क्या होगा 1000, ये होगा 1002। वी नो रो वाइज है ना, RMO फॉलो होता है, तो इट इज 1004, 1006। ठीक है, और फिर देन फर्दर लोकेशंस क्या होंगी आपकी, फर्दर एड्रेसेस होंगे। इसका एड्रेस होगा आपका 1006, नॉट 1006, इट इज 1008, 1010, 1012, 1014। This is 1016, 1018, 1020 and 1022। तो अगर मैं कहूँ a ऑफ 0, तो a ऑफ 0 जो है ये वाला लोकेशन 1000 एंड a ऑफ 1 मीन्स दिस 1008 और a ऑफ 2 मीन्स दिस 1016। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। तो इन दिस सेंस अगर हम a ऑफ 1,2 बोलते हैं तो किस तरीके से वैल्यू हमें रिट्रीव करके देगा, तो a ऑफ 1,2, a ऑफ 1,2 में a ऑफ 1 मीन्स फर्स्टली हमें ये आपका रो सिलेक्शन करना है, तो फर्स्ट रो सिलेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट रो क्या है दिस, तो यहाँ का एड्रेस कितना है 1008 और 1008 पे सेकंड लोकेशन पे जाना है कॉलम वाइज, तो 1008 पे 2 पे जाएंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, इट इज 1000, तो 0, 1 एंड 2, ये 1D एरे है इस केस में। ठीक है, तो ये डबल डायमेंशनल एरे में ये केस फॉलो होता है। जैसे मैं एक रैंडम एग्जांपल लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल विल कैलकुलेट है ना a ऑफ 2,3, तो हाउ दिस विल कम, ये कैसे आएगा, a ऑफ 2 and 3 रेफर किया है, तो इंटरनली फर्स्ट ऑफ ऑल रो सिलेक्शन होगा, सो स्टार a प्लस 2, देन रो के बाद फिर मूव करना होगा कॉलम में, सो कॉलम इज व्हाट थर्ड, एंड देन सिलेक्ट द वैल्यू, सो a ऑफ 2,3। तो अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो a ऑफ 2,3, सो a ऑफ 2,3 कितना है, दिस 1022। ओके, सो दिस इज, है ना, दिस इज 1022। तो सबसे पहले यहाँ a ऑफ स्टार a प्लस 2 मीन्स आपने सेकंड रो सिलेक्ट की, तो सेकंड रो सिलेक्ट किया तो यहाँ एड्रेस क्या निकल के आएगा, सेकंड रो इज दिस वन, इसका बेस एड्रेस कितना है सेकंड रो का 1016, तो 1016 प्लस हमें किस कॉलम पे मूव करना है, थर्ड कॉलम पे। ओके, तो थर्ड कॉलम पे मूव करने के लिए हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 3 हैं और हर एक एलिमेंट कितनी बाइट लेगा, 2 बाइट, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई साइज, तो कितना आएगा, दिस विल गिव यू, सो दिस इज द स्टार, सो दिस विल गिव यू व्हाट 1022, है ना, सो दिस इज 1022, सो दिस। ओके, और अगर इस पर वैल्यू एट 1022 कहूंगा मैं, सो व्हाट इज वैल्यू, वैल्यू एट 1022 इज व्हाट 120, तो यहां से रिजल्ट क्या निकल के आएगा, दिस विल गिव 120 एज आंसर। तो इन जनरल मैं कह सकता हूं कि a ऑफ i कॉमा j, तो सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना होता है, पहले वहां पे रो सिलेक्ट करना होता है, तो स्टार a प्लस आई, फिर प्लस पर्टिकुलर कॉलम पे जाना पड़ता है एंड देन सिलेक्ट दैट,
सो इस तरीके से इंटरनली 2 डायमेंशनल एरे जो है डबल पॉइंटर्स का यूज करता है, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल एरे यूजेस डबल पॉइंटर, है ना, सो इन इट्स इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। So then again this, so what is a is 1000, a plus 1, so next row address, so what is first row address, base is 1008, so 1008, and a plus 2 means second row base address, so it is 1016, and this a plus 3 is not applicable because third row is not there, 0 1 2. So I hope that this concept is clear to you, है ना। then we will move to next, देखते हैं, then it is clear। जैसे ये शॉर्ट प्रोग्राम है, 3x3 का आपका एरे है, सो दिस इज 3x3, सो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स लाइक दिस, ओके। तो ये ए है। अब यहाँ हमको प्रिंट करना है ए डबल इक्वल्स टू स्टार ऑफ ए, तो अगर आप ए बोलेंगे तो भी आपका 1000 ही आएगा, और अगर आप स्टार ए मीन्स इसको सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट रो को, तो फर्स्ट रो का एड्रेस भी आपका कितना निकलेगा 1000, तो ये 1000 इक्वल टू 1000, तो ये क्या हुआ ट्रू। और यहाँ स्टार ए करें तो भी 1000 आएगा, और ए ऑफ जीरो मीन्स अगेन फर्स्ट रो को सिलेक्ट करना 1000, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका ट्रू, और ट्रू एंड ट्रू का रिजल्ट आएगा ट्रू, ट्रू मीन्स 1 वैल्यू प्रिंट होगी, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, ओके। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली वन मोर, है ना, सो दिस, तो यहाँ इंटीजर 3,4 मीन्स 3x4 का एक एरे है, so 3x4 means like this, like this, okay। तो यहाँ ये होगा आपका a of 0, ये होगा आपका a of 1, ये होगा आपका a of 2, okay। and similarly this is what the values are 2 4 7 and what 8 and 3 4 2 and 2 and again 2 3 3 4, so it is 2 3 3 4। तो पहले आपने a प्रिंट किया, a मीन्स ये बेस एड्रेस, तो बेस एड्रेस हम इसका अज्यूम कर लेते हैं 1000 है, तो a मीन्स 1000, तो यहाँ पहला आउटपुट क्या आएगा, पहला आउटपुट आएगा 1000। नेक्स्ट स्टार ए मीन्स आपने फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया, तो फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे तब भी एड्रेस कितना ही होगा 1000, ठीक है। और डबल स्टार ए मीन्स आपने पहले ये फर्स्ट रो सिलेक्ट की, फिर डबल स्टार मतलब फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट किया, तो वैल्यू क्या मिलेगी वहां पर, वैल्यू मिलेगी वहां, ठीक है। नाउ कम टू दिस a plus 1 मीन्स फर्स्ट रो, तो आप 0th रो स्किप करेंगे, फर्स्ट रो पर आएगा, फर्स्ट रो का बेस एड्रेस कितना होगा, ये 1000 1002 है ना, 1002 1004 1006, तो इसका कितना होगा एड्रेस, दिस एड्रेस इज 1008, तो यहाँ कितना रिजल्ट आएगा आपका, दिस इज 1008। अगेन स्टार a plus 1, सो दिस इज डिफरेंट, है ना, दिस इज सम डिफरेंट। तो स्टार a मीन्स आपने फर्स्ट रो सिलेक्ट किया, स्टार ए मीन्स आपने ये 0th वाला रो सिलेक्ट कर लिया, और +1 मीन्स आपने रो जब सिलेक्ट किया तो यहाँ रो के बाद फिर आप कहाँ मूव करेंगे, देन यू आर सपोज टू मूव व्हाट एट कॉलम। तो जब आपने ये स्टार ए +1 किया, तो स्टार ए मीन्स आप 0th रो आपने सिलेक्ट कर लिया, तो 0th रो मीन्स 1000 आपने सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट हो गया, और +1 करेंगे तो अब आप एक कॉलम में मूव कर रहे हैं, तो कॉलम में मूव कर रहे हैं तो +1 मीन्स आपका फर्स्ट कॉलम में जाना है ना, तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ जब जाएंगे आप, तो फर्स्ट कॉलम में जाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई होगा 2 का, सो यहाँ आपको मिलेगा 1002 रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो दिस विल गिव यू 1002 लाइक दिस, ओके। और डबल स्टार ए कर लेते हैं और +1 करेंगे, तो डबल स्टार ए देखते हैं, डबल स्टार ये है डबल स्टार ए +1, तो पहले ए कितना है आपका, ए आपका 1000, तो 1000 को आपने सिलेक्ट किया, फिर उसकी वैल्यू सिलेक्ट की, मतलब रो और कॉलम फिक्स कर दिया, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 2 और +1, तो यहाँ आ जाएगा 2 + 1 विच इज नथिंग बट 3, तो यहाँ आपका कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है, इन दैट केस। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, 2 डायमेंशनल एरे, है ना, सो मीन्स एड्रेसिंग किस तरीके से होगा और ये बिहेव किस तरीके से, सो
नाउ दिस इज अबाउट 3 डायमेंशनल, है ना। तो यहाँ 3x2 के 2 एरेज हैं, तो इसको हम इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं कि let us assume like this 3x2, so these 3 entries and y2 like this. ओके, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा a ऑफ 0 होगा और a ऑफ 1, है ना। ये मीन्स 3x2 के 2 एरेज हैं, 2 एरेज ऑफ 3x2, तो ये 3x2 के 2 एरेज है। तो ये क्या होगा हमारा a ऑफ 0 1, है ना, 0 1, और ये क्या होगा हमारा a ऑफ 0 2, और ये होगा हमारा a ऑफ 0 3, ठीक है। सिमिलरली ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, सिमिलरली ये क्या होगा a ऑफ आपका 1 0 1,0, ये होगा आपका a ऑफ 1,1, और ये होगा a ऑफ व्हाट, a ऑफ 1,2 लाइक दिस, ठीक है। तो अगर वैल्यूज हम स्टोर करें तो रो मेजर ऑर्डर फॉलो होता है ऑलवेज। सो वैल्यूज 2 4 देन 7 8 3 4 2 2 3 4 2 2 and 3 3 4, so it is 3 3 and 4। ओके, तो यहाँ सेम कॉन्सेप्ट होगा, पहला जो सिलेक्शन होगा वो होगा मैट्रिक्स का, दूसरा फिर रो का, फिर थर्ड कॉलम का, ठीक है। ट्रिपल स्टार का यहाँ गेम होगा। ओके, और तो ए इज व्हाट, ए इज मींस आपका सिंपली ए मींस दिस, तो लेट अस अज्यूम 1000 है बेस एड्रेस, तो 1000, तो यहाँ आपका ए कितना आएगा पहले 1000। नाउ नेक्स्ट स्टार ए मींस आपने फर्स्ट रो सिलेक्ट की, फर्स्ट रो सिलेक्ट की, तो फर्स्ट रो का बेस एड्रेस भी कितना ही होगा 1000 ही होगा, so it is also 1000। now डबल स्टार ए मीन्स आपने पहले सिंगल स्टार अप्लाई किया, मीन्स फर्स्ट आपने एरे सिलेक्ट की, फिर डबल स्टार मीन्स आपने फर्स्ट रो सिलेक्ट कर ली, तो फर्स्ट रो का भी बेस एड्रेस कितना होगा 1000, क्योंकि 1000 से स्टोर मान रहे हैं assumption। नेक्स्ट ट्रिपल स्टार ए, ट्रिपल स्टार ए मीन्स पहले आपने रो नंबर एरे नंबर 0 सिलेक्ट की, फिर आपने ये ट्रिपल स्टार ए का मीनिंग यहाँ इस तरीके से होगा, ट्रिपल स्टार ए, ट्रिपल स्टार ए मीन्स दिस इज row selection, not row, this is matrix selection or array selection, array selection। this star is row selection and this star is column selection, column selection। ओके, तो ये रो, ये आपने मैट्रिक्स देन रो देन कॉलम, तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, वैल्यू निकल के आएगी आपकी 2, सो दिस इज 2। नाउ अगेन कम टू दिस a प्लस 1, a प्लस 1 मीन्स आप मैट्रिक्स स्किप किए, मैट्रिक्स स्किप किए मीन्स एरे स्किप किए, तो फर्स्ट एरे पर आए, तो फर्स्ट एरे का आपका बेस एड्रेस क्या मिलेगा a प्लस 1, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो 1000 2 4 6 8 10 एंड 1012, तो यहाँ का जो एड्रेस होगा आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट का, इसका एड्रेस क्या होगा 1012, तो यहाँ मुझे मिलेगा 1012 एंड स्टार ए मीन्स आपने पहले क्या सिलेक्ट किया, पहले आपने एरे सिलेक्ट की, ठीक है, एरे सिलेक्ट की, तो ये एरे सिलेक्ट की, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, सबसे पहले आपने स्टार ए प्लस 1, तो स्टार ए मीन्स आपने एरे सिलेक्ट की, तो एरे सिलेक्ट कर ली, तो यहाँ से क्या आया आपका, यहाँ से आपका आ गया 1000, अब प्लस 1, तो ये 1 कहाँ मूव होंगे, ये हम जाएंगे किसी पर्टिकुलर रो पर, तो फर्स्ट रो पर जाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो में जाने के लिए हर एक में 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपको मिलेगा 1004, मीन्स आपका फर्स्ट रो सिलेक्ट हुआ, फर्स्ट रो कितना होगा 1000 1002 एंड 1004, मीन्स दिस पर्टिकुलर, तो ये क्या होगा 1004, तो यहाँ आएगा आपका 1004। नाउ ऑब्जर्व दिस ऑल्सो, है ना, डबल स्टार ए प्लस 1, so let us assume this space, so it is double star a plus 1, तो पहले ये सिंगल स्टार अगर ऑब्जर्व करते हैं,
तो सिंगल स्टार को सिलेक्ट करने से क्या आएगा आपका 1000, ठीक है। फिर इसके बाद 1000 के बाद फिर इसको सिलेक्ट किया, तो ये हम रो सिलेक्ट कर लिया हमने, है ना, मीन्स रो नंबर 0th। तो रो नंबर 0 में कॉलम नंबर 1, तो कॉलम नंबर 1 अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो दिस विल बी 1002, सो 1000, तो यहाँ आएगा हमारा, है ना। अगेन आई एम रिपीटिंग, ए मीन्स पहले हमने ये मैट्रिक्स सिलेक्ट की, एरे सिलेक्ट किया, फिर उस एरे में हमने रो सिलेक्ट किया 0th रो, है ना। फिर मतलब ये हमने मैट्रिक्स सिलेक्ट की, फिर 0th रो सिलेक्ट किया, फिर 0th रो में हमको किस सेल पे मूव करना है, फर्स्ट पे। तो ये 0th रो है, इसमें फर्स्ट सेल पे मूव करने के लिए इस पर्टिकुलर सेल, तो यहाँ का रिजल्ट कितना निकलेगा, दिस विल गिव यू व्हाट 1004 एज द आंसर, ओके। तो यहाँ आपका आएगा 1004 अगेन, not 1002, 1004, ये this is what, this is 1002 location, this is 1000, 1002। now ट्रिपल स्टार A+1, तो पहले ट्रिपल स्टार में सबको सिलेक्ट कर लीजिए पहले, तो रो नंबर 0, है ना, एरे नंबर 0, रो नंबर 0, कॉलम नंबर 0, तो वैल्यू क्या मिली 2, और 2 + 1 करेंगे, सो दिस विल रिजल्ट यू 3, लाइक दिस। So I hope that this concept is clear to you, okay, and if you are actually enjoying, this programming stuff pertaining to the data structure part, and exclusively C programming concepts, okay, so then please like, subscribe and share this particular channel with your learning community, okay. And if you have any doubt, then please write in comment box, then I will resolve it. So happy learning to all of you, and stay safe.